meanwhile, on behalf of Chandigarh Literary Society, I welcome you all to this open mic poetry evening. I'm very happy to see you all. Don't worry, itna formal nahi hone wala hai. It's going to be fun and I hope very emotional as well. To start the evening, I would like to invite Abhishek Vasudev. Abhishek Vasudev is a music enthusiast. He plays the flute, guitar and mouth organ. Abhishek, please. And as far as my performance is concerned, I'll try to blend a few rags based on Pahadi rag, definitely, which will also involve a few timeless Bollywood classics. And since we are at Literary Fest, I think it would not be fair if we do not play the iconic title track of an iconic series penned by the legendary R.K. Narayanan ji. I'm talking about the Malgudi days. So you can expect that also in the video. So here we go.
something else for you also. So it's another modern contemporary Bollywood classic. So I hope you recognize this, and please join in if you can, if you understand. Request दे दो ना. You know what is coming from your heart. It's so beautiful. Sorry, I'm playing it for the first time. So I Okay just, with you. there is, however, another track that I think will suit the occasion. I'll play that. I think you must have heard it before. Am I allowed to come down now? What if you have another song? I can take requests also. Please, if anybody has anything in mind, I can try to play that. All right. Let's go ahead with Pahadi. This is a very, very beautiful, sweet Pahadi track. I think everybody will resonate with it.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Abhishek, for that wonderful performance. Good evening, everyone. Good evening once again. Today, I feel like I'm not audible in the back. The mic is on, actually. Am I audible now? Okay, great. I will repeat myself. Good evening once again. Today, we bring you a fantastic lineup of poets. They will perform in English, Hindi, Urdu, and Punjabi. To start off the evening, we have with us our chief guest, Dr. Sumita Mishra, Additional Chief Secretary to the Government of Haryana and Chairperson, Chandigarh Literary Society. This evening was her idea, so we must thank her. And ma'am, a big welcome to you. I request Amy to please welcome ma'am with a wonderful applause. Esteemed guests, Mr. Manmohan Singh, Manager Partner and CEO, Aroma Group, Shri Jang Bahadur Goyal, an eminent Punjabi writer and translator, Mr. Alok Nigam, former IS officer. Now, your hosts for the evening are Yuvika Garewal and Shikhar Goyal. Yuvika is an educator and a published author. She's published 2 books. She teaches English to young learners. Shikhar is an entrepreneur by day and writer by night. His debut novel is set to release in 2025. A huge welcome to poets, friends, and family. Let's listen to some poetry. Over to you guys. I welcome you all one more time. Thank you, Sonia, for welcoming everyone. Warm greetings on this evening. Well, we thought that weather would be a deterrent, but it is really, really delightful and joyous to see you all here. It is wonderful to have you all here this evening. Well, ladies and gentlemen, now is the time to dive into the ocean of emotions that our poets this evening have created for you. And I think because it has rained, barsat ka mausam hai, shairana hai, so we would like to start with something poetic. I'm not a connoisseur, but still I'll try to. I think it will be fitting to start by these words. Kalam ki nok se nikli har baat hai, शायरों की महफिल में बस लफ्ज़ों की बरसात है. आओ मिलकर इस मौसम का आगाज़ करें, कुछ सुने, कुछ कहें, कुछ मीठी सी आवाज़ करें. Well, this evening we have a blend of languages, themes, emotions, words, poets from diverse backgrounds and cultures. And we have really looked forward to this evening. Our poets are going to bare their souls to you, and you all look perfectly ready to receive it. You all know that poetry is an art. It thrives on interaction. So while you're sitting here, cheer, congratulate, give, receive, connect with the words, with the thoughts, and with each other. You can be loud, you can be soft, interact and connect. Well, that's the theme and that's the call for this evening. And if I may also go ahead to mention that if painting comes from blankness and music comes from silence, then poetry comes from space between thoughts. Let us all this evening settle in that space and listen and watch as this evening unwraps and unfolds the charm of the poets that they have to offer. Well, on this beautiful thought, I'm going to call our first featured poet. Most of you know her. She's a spoken word poet, a podcast host and facilitator known for her poem Dark. To Lahore with Love, she promotes cross-border peace through a letter writing initiative. She also hosts Agla Varka, the Partition podcast, and is writing a book about her visit to Lahore. Amy has performed at several literary festivals, and today she has joined us, and we are glad that she has. So, ladies and gentlemen, join me in welcoming Amy Singh. Hi everyone, I'm Amy. बारिश में भी आप इतना वक्त निकाल कर आए ट्रैफिक से लड़ते हुए, so I welcome you all.
पीछे तक आवाज़ आ रही है? ओके, सो अगेन हिंदी के एक बहुत लोकप्रिय शायर हुए हैं। उन्होंने एक बार लिखा कि मौन भी एक तरह की अभिव्यंजना है, साइलेंस टू इज एन एक्सप्रेशन, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। हाँ, अगे के नाम पर दाद दीजिए प्लीज़, बाकाबिले तारीफ बात लिखी उन्होंने। तो मेरा सच ये है कि मैं इन दिनों अपनी लिखी हुई नज़मों से 2-3 कदम की दूरी पर हूँ और बिल्कुल इस जोन में नहीं हूँ कि मैं अपना लिखा कुछ परफॉर्म करूँ। लेकिन जब सुमिता मैम और इरफान, सोनिया, सीरियस फैमिली ने बुलाया, इशरार किया, तो ना नहीं कह सकते अपनों को, तो मैं आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपनी किसी भी लिखी हुई कविता से भी ज़्यादा खूबसूरत एक नज़्म सुनाने के लिए आई हूँ। तो आप कहेंगे इरशाद, तो मैं शुरू करूँ जी। इसको अरबी में महमूद दारविश ने लिखा, जो एक पैलेस्टीनियन पोइट है। फिर इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में फ़ेटी जोडा ने किया और उसके बाद आज सुबह मैंने इसका तर्जुमा हिंदुस्तानी में किया। तो लेटर टू अ यंग पोइट बाय महमूद दारविश। हमारे खाकों पर यकीन ना करो, उन्हें भूल जाओ। हमारे खाकों पर यकीन ना करो, उन्हें भूल जाओ और अपने अल्फाज से शुरुआत करो। अपने अल्फाज से शुरुआत करो, जैसे कि तुम पहले शायर हो या फिर आखिरी। जैसे कि तुम पहले शायर हो या फिर आखिरी। अगर तुम हमारा कलाम पढ़ते हो तो हमारे गुरूर को मत बढ़ाना आगे। अगर तुम हमारा कलाम पढ़ते हो तो हमारे गुरूर को मत बढ़ाना आगे, बल्कि दर्द की किताब में हमारी खताओं को कम कर देना। हमारे दर्द की किताब में हमारी खताओं को कम कर देना। किसी से ना पूछना मैं कौन हूँ, किसी से ना पूछना मैं कौन हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी माँ कौन है। और जहाँ तक तुम्हारे पिता का सवाल है, अपनी परवरिश खुद करना। और जहाँ तक तुम्हारे पिता का सवाल है, अपनी परवरिश खुद करना। सच अगर सफ़ेद है तो उस पर कौवे की स्याही से लिखना। सच अगर सफ़ेद है तो उस पर कौवे की स्याही से लिखना। सच अगर स्याह है तो उस पर शराब की रोशनी से लिखना। अगर तुम शाहीन से मुकाबला चाहते हो, अगर तुम शाहीन से मुकाबला चाहते हो, तो शाहीन के साथ बुलंदी पर उड़ना। अगर तुम शाहीन से मुकाबला चाहते हो तो शाहीन की तरह बुलंदी पर उड़ना। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो वो नहीं, तुम ही अपने खात्मे की ख्वाहिश रखना। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो वो नहीं, तुम खुद ही अपने खात्मे की ख्वाहिश रखना। ज़िंदगी इतनी ज़िंदा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ज़िंदगी इतनी ज़िंदा नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हम इस मामले पर ज़्यादा गौर नहीं करते ताकि हमारे जज्बात की सेहत को नुकसान न पहुँचे। ज़िंदगी इतनी ज़िंदा नहीं है जितना हम सोचते हैं, पर इस मामले पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते ताकि जज्बात की सेहत को नुकसान न पहुँचे। अगर तुम, गौर फरमाइए, मेरी फेवरेट लाइन है, अगर तुम किसी गुलाब पर बहुत देर तक गौर करोगे तो कोई भी तूफ़ान तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगा। अगर तुम किसी गुलाब पर बहुत देर तक गौर करोगे तो कोई भी तूफ़ान कभी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम मेरी तरह हो लेकिन मेरी गहराई साफ है। This poet is writing at the zenith of his career. तुम मेरी तरह हो लेकिन मेरी गहराई साफ है और तुम्हारे पास ऐसी राहें हैं जिनके राज अभी तुम पर जाहिर नहीं हुए। तुम जवानी के ख़त्म होने को सलाहियत की पुख्तगी या हिकमत कह सकते हो। ये हिकमत है बेशक, एक ठंडे गैर गज़लियती अंदाज की हिकमत। जब हम बहुत सारे टेक्निक्स और रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, गज़लें लिखने लग जाते हैं, उसके बाद एक ऐसा दौर आता है कि उन सब कायदों से हटकर हम खुली नज़में लिखने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये कह रहे हैं कि तुम जवानी के ख़त्म होने को सलाहियत की पुख्तगी या हिकमत कह सकते हो,
बेशक एक ठंडे गैर रज़ियत अंदाज की हिकमत, हाथ में 1000 परिंदे, हाथ में 1000 परिंदे उस एक परिंदे के बराबर नहीं जो दरख्त को पहने हुए हो। और मुश्किल वक्त में एक नज़्म कब्रिस्तान में किसी खूबसूरत फूल की तरह होती है। मुश्किल वक्त में एक नज़्म कब्रिस्तान में किसी खूबसूरत फूल की तरह होती है। मिसाल हासिल करना आसान नहीं, तो खुद बन जाओ मिसाल। मिसाल हासिल करना आसान नहीं, खुद बन जाओ मिसाल, और खुद से भी अलग बनो सदा की सरहदों के पार। जोशो खरोश की एक मियाद है, तो अपने दिल की खातिर जोश से भरे रहना और पन्ना पलटते रहना। महबूब से मत कहना तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, इसके उलट ये कहना हम दोनों मेहमान हैं एक भगौड़े बादल के। अपनी तमाम ताकत से कायदे से हटकर चलना, अपनी तमाम ताकत से कायदे से हटकर चलना। दो सितारों को एक जुमले में मत रखना, और हाशिए को अहम के हमेशा पास रखना। हमारी हिदायतों पर यकीन मत करो, लेकिन काफिले के निशान पर यकीन करना। हमारी हिदायतों पर चाहे यकीन ना करो, लेकिन काफिले के निशान पर यकीन करना। गुस्से में बैल की तरह ताकतवर बनो, मोहब्बत में बादाम के फूल की तरह नाजुक। गुस्से में बैल की तरह ताकतवर बनो, मोहब्बत में बादाम के फूल की तरह नाजुक। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जब तुम खुद अकेले तन्हा बंद कमरे में सजदे में निसार होते हो। रास्ता लंबा है किसी पुराने शायर की तरह, मैदान और पहाड़ियाँ, दरिया और वादियाँ। तुम्हारा काम मुझे तुम्हारे बारे में परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं। तुम्हारा काम मुझे तुम्हारे बारे में परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं। तुम मुझे मायूस नहीं करोगे अगर तुम खुद को दूसरों से या फिर मुझसे भी दूर करो तो। तुम मुझे मायूस नहीं करोगे अगर तुम खुद को दूसरों से या मुझसे भी दूर करो तो, क्योंकि दरअसल जो मुझसे मुख्तलिफ है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो मुझसे मुख्तलिफ है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जब तुम गम में मोम की तरह पिघलते हो, जब तुम गम में मोम की तरह पिघलते हो, तो ये मत सोचो कि कौन तुम्हें देखेगा या तुम्हारी फितरत की रोशनी का कौन पीछा करेगा। खुद के बारे में सिर्फ इतना सोचो, क्या यही मेरा तमाम वजूद है? क्या यही मेरा तमाम वजूद है? नज़्म हमेशा नामुकम्मल होती है, तितलियां उसे पूरा करती हैं। नज़्म हमेशा नामुकम्मल होती है, तितलियां उसे पूरा करती हैं। इश्क में कोई मशवरा नहीं, ये तजुर्बे की बात है। शायरी में भी कोई मशवरा नहीं, ये सलाहियत की बात है। और अंत में एक ही बात है, सलाम सलाम सलाम। Thank you, Amy, for beautifully blending your words with those of the ever immortal Mahmood Darwish. Ladies and gentlemen, now we move on to the next segment for the evening, where we have a sizzling lineup of 12, I don't know, maybe 11 or 10, because it's a rainy season, it is flu season, that's the excuses that we've heard so far. But for me right now, it is poetry season, and I am going to invite the next few poets over here on the stage, the next few poets on the stage to sizzle with their words. हमारे पहले कवि सिर्फ कवि नहीं, एक रंगमाच अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और एक गायक हैं। Please welcome on the stage पवन मुसाफिर। कि वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्भ और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूल यूं ही किसी बान में। कि 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे,
ये 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसी विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। बीज वसुधा तो यहाँ पर विराजमान इन सभी वाटिका में सजे हुए पुष्पों को मैं नमन करता हूँ। तो और वहीं अज्ञे जी की पंक्ति के साथ शुरू हुई कविता को अपनी कविता देने की कोशिश करता हूँ कि हम ही तो करते हैं कहानियां बयां, हम ही तो मकबरों को ताज करते हैं। हम ही तो करते हैं कहानियां बयां, हम ही तो मकबरों को ताज करते हैं। ख्याली जंग लड़ते हैं हाथों में कलम थाम, हम ही तो गिद्धों को बाज करते हैं। हम ही तो गिद्धों को बाज करते हैं। और कल की लड़ाई में आज को नहीं गवाते, कल की लड़ाई में आज को नहीं गवाते, हम कल और कल को भी आज करते हैं। और पेशे से हम सब शायर हैं जनाब, अल्फाजों से जज्बातों का इलाज करते हैं। वहीं अपनी कविता को रखता हूं कि बरसात में ही घर मुसाफिर आंसू बहे तो क्या बहे, बरसात में ही घर मुसाफिर आंसू बहे तो क्या बहे, मुश्किलों में रहे कैद किसी से ना अपनी व्यथा कहें। छोड़ दे जी इस जहां को जगह ले ले नर्क में, छोड़ दे जी इस जहां को जगह ले ले नर्क में, पर नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें। नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें। अब अपनी दलीलें पढ़ता हूं कि क्यों कहना पड़ रहा है मुझे ये कि हम इंसान दुनिया वालों तब बेचारे होने लगे, हम इंसान दुनिया वालों तब बेचारे होने लगे जब भाषा रंग रूप मजहबों में बंटवारे होने लगे। परेशान गुरु नानक ईसु अल्लाह ब्रह्मा बुद्ध हैं, परेशान गुरु नानक ईसु अल्लाह ब्रह्मा बुद्ध हैं। पूजा स्थल वीरान पड़े हैं, सड़कों पर धर्म युद्ध है। पूजा स्थल वीरान पड़े हैं, सड़कों पर धर्म है। आम कत्लेआम यहाँ है, आम कत्लेआम यहाँ, हर तरफ खून के झरने बहे। नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें, नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें। और अब कुछ मंदबुद्धि लोग अपनी सखियों को, अपनी बहनों को ये मशवरा देते हैं, वहीं से शेर पढ़ता हूं कि रात काली कपड़े छोटे जमाना खराब है बाहर न जा, रात काली कपड़े छोटे जमाना खराब है बाहर न जा। तुम जैसों से ही तो बनता है जमाना, अपनी सखियों को ये समझा। तुम जैसों से ही बनता है जमाना, अपनी सखियों को ये समझा कि गजलें मोहब्बत पर कैसे लिखें, गजलें मोहब्बत पर कैसे लिखें। मुंह पर तेजाब फेंक दिए जाते हैं, इस्तेमाल करके दिल जहां पना फेंक दिए जाते हैं। और आदमी की फितरत निगाहों से दिख जाती है, आदमी की फितरत निगाहों से दिख जाती है। यहाँ दाम पुख्ता लग जाए तो मोहब्बत भी बिक जाती है, यहाँ दाम पुख्ता लग जाए तो मोहब्बत भी बिक जाती है। अरे बर्दाश्त की भी हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है, आखिर कब तलक सहें। नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें, नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें। ये दुनिया मेरे कागजों से है सच्चाइयां पोंछती, ये दुनिया मेरे कागजों से है सच्चाइयां पोंछती। गर्दनें आवाम की है सरकारें दबोचती। मर रही है कलाकारी, मर रही है कलाकारी, पैसों की अंधी राहों में बदनाम गरीबी हो रही है तवायफों की बाहों में, बदनाम गरीबी हो रही है तवायफों की बाहों में। और वो माँ बाप जो हमें जन्म दे जिस्म दे जान दे, वो माँ बाप जो हमें जन्म दे जिस्म दे जान दे, बेघर कर देती है दुनिया। मैंने देखे हैं सड़कों पर भीख मांगते। अजी माफ करना जी मंदबुद्धि हूँ, माफ करना जी मंदबुद्धि हूँ, जो दिल में आए हम वो कहें। पर नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें, नर्क अगर हम इस जहां को ना कहें तो क्या कहें। अंत में एक छंद पढ़कर इजाजत चाहूंगा कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो। अंत में मशवरा कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस छोड़ने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस छोड़ने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए, कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। और कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए, अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए, अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और बतौर तोहफा या शेर के शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं। इजाजत चाहता हूँ आपकी तालियों से वजीफा चाहूंगा कि शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं, शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं। मौत तो जिंदगी की अहमियत बताती है। और पैसे कमा या ना कमा ये लोग कमा ले मुसाफिर,
पैसे कमा या ना कमा ये लोग कमाने मुसाफिर, जनाजे की भीड़ इस मुर्दे की हैसियत बताती है, जनाजे की भीड़ मुर्दे की हैसियत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। Our next poet is a wanderer, and in her own words, somebody who is abundantly adored but unaware of the beauty she holds. Ladies and gentlemen, please welcome Jannat Sur. जन्नत नाम है मेरा और शब्द मुझे लिखते हैं। पहले मैं शब्दों को लिखती थी, अब शब्द मुझे लिखते हैं। बदला है अंदाज मेरा, बदला है मिजाज मेरा, बदला है अंदाज मेरा, बदला है मिजाज मेरा, मेरे शब्दों ने बदला है आज मेरा। अब पेश है आपके सामने सवालों और ख्यालों का एक ऐसा सफ़र जिस पे मैं और शायद आप भी अक्सर खुद को उलझा पाते हैं। शीर्षक है आज़ाद हो। मेरे ख्याल इतने उलझे हैं कि कागज़ पर उतरते नहीं। मेरे ख्याल इतने उलझे हैं कि कागज़ पर उतरते नहीं, उतरते भी हैं तो अंदर के इस शोर को ठीक से बयां करते नहीं। उतरते भी हैं तो अंदर के इस शोर को ठीक से बयां करते नहीं। थम जाऊं अगर मैं कुछ पल तो ज़िद्दी हैं ये, थमते ही नहीं। थम जाऊं अगर मैं कुछ पल तो ज़िद्दी हैं ये, थमते ही नहीं। संवारना चाहूं तो संवरते नहीं, और समेटूं भी तो कैसे, ये ठीक से बिखरते ही नहीं। इतने ख्याल, इतने सवाल, क्या इनका जवाब ढूंढ पाऊंगी कभी? इतने ख्याल, इतने सवाल, क्या इनका जवाब ढूंढ पाऊंगी कभी? क्यों जूझती हूँ बेवजह, क्या इनसे फुर्सत पाऊंगी कभी? कैद हूँ या आज़ाद हूँ, इस उलझन से दूर हूँ मैं। कैद हूँ या आज़ाद हूँ, इस उलझन से दूर हूँ मैं, पर हाँ कई दफ़ा सोचने को मजबूर हूँ। अगर ख्यालों का बंधन बंधन है तो मैं आज़ाद नहीं। अगर ख्यालों का बंधन बंधन है तो मैं आज़ाद नहीं, और अगर सवालों से घिरना एक कैद है तो मैं आज़ाद नहीं। अगर सवालों से घिरना एक कैद है तो मैं आज़ाद नहीं, नहीं हूँ मैं आज़ाद अगर इनसे जूझना मुझे बांध रहा है। पर मेरे ख्याल, मेरे पंख भी तो बने हैं। मेरे ख्याल, मेरे पंख भी तो बने हैं, और मेरे सवाल एक उम्मीद। तो अगर ख्यालों से घिरी हूँ मैं तो शायद उड़ने के लिए आज़ाद हूँ। अगर ख्यालों से घिरी हूँ मैं तो शायद उड़ने के लिए आज़ाद हूँ मैं, और अगर सवालों से भरी हूँ मैं तो शायद जवाब ढूंढने के लिए आज़ाद हूँ मैं। याद है ना, फैज़ ने कहा था, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि ज़बां अब तक तेरी है। तो अगर बोलने को आज़ाद हूँ मैं, अगर बोलने को आज़ाद हूँ मैं, सोचने को, सवाल करने को, जवाब ढूंढने को आज़ाद हूँ मैं, तो आज़ाद हूँ मैं। हाँ, आज़ाद हूँ मैं जीने के लिए। बहुत शुक्रिया। Next up on stage, we have Manish Vidit, who's all the way from Jalandhar. He's a language educator and loves to write in Hindi, English, Punjabi and Urdu. इन जनाबों की बात करते हो, तुम तो ख्वाबों की बात करते हो। इन जनाबों की बात करते हो, तुम तो ख्वाबों की बात करते हो। मैं मोहब्बत के गुल लेके आया, तुम गुलाबों की बात करते हो। चिकनी चुपड़ी चंद बातों के, चिकनी चुपड़ी चंद बातों के चंद टुकड़े जोड़कर उन्होंने मोहब्बत की एक मशीन बनाई। चिकनी चुपड़ी चंद बातों के चंद टुकड़े जोड़कर उन्होंने मोहब्बत की एक मशीन बनाई, जो चली ही नहीं खूब दौड़ी, जो चली ही नहीं खूब दौड़ी। कहीं कुछ रोज, कहीं कुछ मास और कहीं कुछ बरस। चिकनी चुपड़ी चंद बातों के चंद टुकड़े जोड़कर उन्होंने मोहब्बत की एक मशीन बनाई, जो चली ही नहीं
खूब दौड़ी, कहीं कुछ रोज, कहीं कुछ मास और कहीं कुछ बरस। फिर अचानक रुकी, ठप पड़ी और पुर्जा पुर्जा वो बिखर गई। यकीनन वो हर बार भावनाओं का तेल देना भूलते रहे, भावनाओं का तेल देना भूलते रहे। एक कविता, छोटी छोटी पंक्तियां की कविताएं हैं। एक कविता उसके नाम, यानी हर शाम, एक कविता उसके नाम हर शाम, यानी गम को पालना ही नहीं कुछ कारना भी। एक छोटी सी नज्म है, हिचकी। जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है, जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है, मन के हलक में उसी पल की एक उम्र लंबी फांक अटक जाती है। जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है, मन के हलक में उसी पल की एक उम्र लंबी फांक अटक जाती है। क्या तुम्हें दिन भर कभी हिचकी नहीं आती? क्या तुम्हें दिन भर कभी हिचकी नहीं आती? मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये महज अल्फाज नहीं दहकते अंगारे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये महज अल्फाज नहीं दहकते अंगारे हैं। एक बार रख तो दिए ज़बान पर, मगर ना उगलते बना ना निगलते। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये महज अल्फाज नहीं दहकते अंगारे हैं। एक बार रख तो लिए ज़बान पर, मगर ना उगलते बना ना निगलते बना। मेरी आत्मा पर अब भी तेरे नाम के छाले, मेरी आत्मा पर अब भी तेरे नाम के छाले हैं। एक थोड़े अलग रंग की छोटी छोटी अरियो भावुकता, अरियो भावुकता बुद्धि की शान पर शब्दों को धार दे। अरियो भावुकता बुद्धि की शान पर शब्दों को धार दे, विचार की तलवार टंगी है मेरे सर पर। अरियो भावुकता बुद्धि की शान पर शब्दों को धार दे, विचार की तलवार टंगी है मेरे सर पर, मगर शहादत फिर भी तेरी है। गजल है, कोई अपना नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता, लेने कोई खबर नहीं आता। कोई अपना नजर नहीं आता, लेने कोई खबर नहीं आता। छोड़ दो गली, छोड़ दो अब वीरां गली दिल की, छोड़ दो अब वीरां गली दिल की, आजकल वो इधर नहीं आता। छोड़ दो अब वीरां गली दिल की, आजकल वो इधर नहीं आता। पेड़ तन्हा उदास गुल भी, पेड़ तन्हा उदास गुल भी है, शाख पर अब समर नहीं आता। समर पर, शाख पर अब समर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता। मेरी तन्हाई में न ढूंढो उसे, मेरी तन्हाई में न ढूंढो उसे, मेरी तन्हाई में न ढूंढो उसे, तीरगी में नजर नहीं आता, तीरगी में नजर नहीं आता। तेरे जाने का गम नहीं मुझको, तेरे जाने का गम नहीं मुझको, गमज़दा होता अगर नहीं आता, गमज़दा होता अगर नहीं आता। मांगने वाले भी उधर ही गए, ये देखिए, मांगने वाले भी उधर ही गए, देने वाला जिधर नहीं आता, देने वाला जिधर नहीं आता। काट दो शाख शाख अब इसकी, काट दो शाख शाख अब इसकी, साहिबां पर शजर नहीं आता, साहिबां पर शजर नहीं आता। कोई अपना नजर नहीं आता, लेने कोई खबर नहीं आता। अगर इजाजत हो तो दो छोटी छोटी नज़में हैं। जब भी मन की चौखट पर सांझ घिर आती है, जब भी मन की चौखट पर सांझ घिर आती है, मैं चौखट से उठ मन के भीतर फैली रात के कक्ष में आ जाता हूँ। जब भी
मन की चौखट पर सांझ फिर आती है, मैं चौखट से उठ मन के भीतर फैली रात के कक्ष में आ जाता हूँ। उम्मीद के तेल से हिम्मत का दिया जला, भोर के सूरज का सपना उगाता हूँ। भोर के सूरज का सपना उगाता हूँ। मेरा नया जन्म वक्त की कोख से हर रोज ऐसे ही होता है। मेरा नया जन्म वक्त की कोख से हर रोज ऐसे ही होता है। जब मैं खुद से रूबरू होता हूँ तो मैं कल में नहीं, आज में सुरखरू होता हूँ, सुरखरू होता हूँ, सुरखरू। Thank you, Varnisi. I'd like to remind all poets, we're a little short on time, so just please be in the time slots that have been allotted to you. Next up, ladies and gentlemen, is Karan Seher. He's a semi-government employee, a graphic designer, and a veteran of numerous mushairas, kavi sammelans, and radio shows. Please welcome Karan Seher. डर को मत दीवार बनाना, डर को मत दीवार बनाना, मिलने के आसार बनाना। डर को मत दीवार बनाना, मिलने के आसार बनाना। कल मैं एक कहानी लिखकर भूल गया किरदार बनाना। कल मैं एक कहानी लिखकर भूल गया किरदार बनाना। और शेर आखिर की मेरे बाद मेरी मिट्टी से, मेरे बाद मेरी मिट्टी से और अच्छा फनकार बनाना। मेरे बाद मेरी मिट्टी से और अच्छा फनकार बनाना। बहुत शुक्रिया। गजल पेश करता हूँ। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। और बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, कोई आंसू गिरा कर देखते हैं। बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, कोई आंसू गिरा कर देखते हैं। और गजल में जब कमी सी लग रही हो, गजल में जब कमी सी लग रही हो, तुम्हें शेरों में लाकर देखते हैं। गजल में जब कमी सी लग रही हो, तुम्हें शेरों में लाकर देखते हैं। और हमारे ही नहीं सुनते हमारी, हमारे ही नहीं सुनते हमारी, हमें ही आंख उठाकर देखते हैं। हमारे ही नहीं सुनते हमारी, हमें ही आंख उठाकर देखते हैं। और शेर देखें कि ये किसके नूर से रोशन है कमरा, ये किसके नूर से रोशन है कमरा, चिरागों को बुझाकर देखते हैं। ये किसके नूर से रोशन है कमरा, चिरागों को बुझाकर देखते हैं। नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम, नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम पुराने गम उठाकर देखते हैं। नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम पुराने गम उठाकर देखते हैं। और आखिरी वक्त में जो है एक मज़ाहिया सा शेर है कि कहाँ लिखा है तुमने नाम मेरा, कहाँ लिखा है तुमने नाम मेरा, अभी चश्मा लगाकर देखते हैं। जिंदगी की राह में कुछ ठहराव आते हैं, जहाँ हर कदम पर खामोशी से मुलाकात होती है। Well, our next poet finds solace in those moments and pauses. She's an educator who teaches the beauty of literature to her students. So everyone brace yourself for a reality check and a warm, warm hug both. Ladies and gentlemen, Akriti Sharma for you. तो अपनी नाम और काम के अलावा अगर मुझे आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना हो तो मैं कहूँगी कि
मुझे छोटे छोटे किस्सों को कविताओं में बदलना खूब भाता है। शब्दों को तोड़ मरोड़ जोड़ना थोड़ा बहुत आता है। तो एक रोज हुआ यूं कि मैंने एक दादाजी को, एक बुजुर्ग दादाजी को, एक खाना बदोश राहगीर से तर्क वितर्क करते सुना। अब जहां राहगीर की हंसी में ही छिपे सारे जवाब थे, वहां दादाजी के सवाल बड़े लाजवाब थे। तो जानते हो उन्होंने उस राहगीर से क्या पूछा होगा? नहीं? तो सुनो। भटकते मुसाफिर बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना। गुजरता चला जाएगा तू बेशुमार शहरों से, गुजरता चला जाएगा तू बेशुमार शहरों से, पर कहाँ अपने वजूद के बीच तू बोएगा। अनजान चेहरों में जब तुझे तलाश अपनों की होगी, तो कौन जाने कितनी निष्पक्षता उस वक्त तेरी नजरों में होगी। भटकते मुसाफिर बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना। जो कभी गूंज उठेंगे सन्नाटे, तो अपने मन को बहलाने तू बिसरी कोई धुन कैसे दोहराएगा। और जो कभी कहीं गूंज उठेंगे सन्नाटे, तो अपने मन को बहलाने तू बिसरी कोई धुन कैसे गाएगा। और जो कभी कहीं चूक जाएंगे निशाने, तो वीरानेपन को पनपने से तू भला कैसे रोक पाएगा। भटकते मुसाफिर बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना। पिरोता चला जाएगा तू अनमोल नज़ारों को, पिरोता चला जाएगा तू अनमोल नज़ारों को, किसी रेशम से धागे में, पर बिखरने पे पुरानी यादों के मोती तू कैसे उन्हें समेट पाएगा। मिट्टी भांत भांत की फरोलते हुए तेरे ये कदम, मिट्टी भांत भांत की फरोलते हुए तेरे ये कदम, बढ़ते तो चले जाएंगे, पर दूर कहीं महकने वाले अपने घर के आंगन को तू दूर कैसे कर पाएगा। भटकते मुसाफिर बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना, है आखिर वो कौन सा तराना। शुक्रिया। Well, poetry is not about the whole story, it's about a moment. Our next poet takes us to those moments between highs and lows of human connection. He makes one think about existence, companionship and solitude, much more and beyond. So let's hear it from our next poet, Gautam Sharma on stage. दीवाना खास हूँ तेरा, यही पहचान काफ़ी है। दीवाना खास हूँ तेरा, यही पहचान काफ़ी है। दुआओं में भी हूँ शामिल, ये एक एहसान काफ़ी है। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था, वही गुम थी। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था, वही गुम थी। रखो जो नाम तुम मेरा, वही उन्वान काफ़ी है। रहा एक हम सफ़र सबका, अकेलापन है नाम उसका। रहा एक हम सफ़र सबका, अकेलापन है नाम उसका। किसी के साथ रहना हो तो ये नादान काफ़ी है। करम कोई तो है मुझ पे, मेरी उम्मीद की ये लौ मुसलसल जलती रहती है, भले तूफ़ान काफ़ी है। बुज़ुर्गों से जो पूछा ज़िंदगी क्या है, तो वो बोले बड़ी मासूम शय है ये, मगर शैतान काफ़ी है। छोटे छोटे हाथ हैं, कितने प्यारे हाथ हैं। चीख दब के रह गई, ऊपर इतने हाथ हैं। प्यार से थामे रखूं, उसके ऐसे हाथ हैं। एक पर्दा यार का और मेरे हाथ हैं।
पर्दा यार का और मेरे हाथ हैं। कितनी जिम्मेदारी लूं, दो ही मेरे हाथ हैं। और तुम गिराओगे उसे, उसके पीछे हाथ हैं। आखिरी के समय अपनी जगह लेता हूँ। ये कैसे दोस्त मिलते हैं, ये कैसे दोस्त मिलते हैं, नमूने दोस्त मिलते हैं। जहां पर कुछ नहीं रखा वहीं पे दोस्त मिलते हैं। नहीं मौजूद जन्नत में, नहीं मौजूद जन्नत में, ज़मीं पे दोस्त मिलते हैं। उन्हें दुश्मन मिले सारे, हम ही से दोस्त मिलते हैं। कहा मकता चला गौतम, कहा मकता चला गौतम, जहाँ पे दोस्त मिलते हैं। Ladies and gentlemen, next up we have somebody all the way from Jammu and Kashmir. He is a poet, a singer, and a recently turned Chandigarh resident. Please welcome Ahmed Bakr. एक शेर मैम की नज़र। दुआएं मन्नतें रोशन दिया कबूल करे, दुआएं मन्नतें रोशन दिया कबूल करे, वो आए और मेरे अश्के वफा कबूल करे, वो आए और मेरे अश्के वफा कबूल करे। वो आईने से अगर मुतमयन नहीं है तो फिर, वो आईने से अगर मुतमयन नहीं है तो फिर हमारी आंखें बतौर आईना कबूल करे। दुआएं मन्नतें रोशन दिया कबूल करे, वो आए और मेरे अश्के वफा कबूल करे। वो आईने से अगर मुतमयन नहीं है तो फिर हमारी आंखें बतौर आईना कबूल करे। एक गजल से शुरू करूंगा आपकी तवज्जो से। मैं कैसे तुझको बताऊं पागल, मैं कैसे तुझको बताऊं पागल, मोहब्बतों में अना का मतलब, अना कहते हैं गुरूर को। मैं कैसे तुझको बताऊं पागल, मोहब्बतों में अना का मतलब, जुनून कमसिन उम्र का तुझको पता नहीं है वफा का मतलब। मैं कैसे तुझको बताऊं पागल, मोहब्बतों में अना का मतलब, जुनून कमसिन उम्र का तुझको पता नहीं है वफा का मतलब। और ये सुरखुरू जो गवा के सब कुछ, ये सुरखुरू जो गवा के सब कुछ, इन्हें पता है फना का मतलब। ये सुरखुरू जो गवा के सब कुछ, इन्हें पता है फना का मतलब। मैं चाहता था वो ठहर जाएं, मैं चाहता था वो ठहर जाएं, उन्हें पता था पनाह का मतलब। मैं चाहता था वो ठहर जाएं, उन्हें पता था पनाह का मतलब। और ये शेर बड़ा गौर से सुनिएगा कि वो जिसने बेहतर था मरना समझा, वो जिसने बेहतर था मरना समझा, वो जानता था इल्तिजा का मतलब। वो जिसने बेहतर था मरना समझा, वो जानता था इल्तिजा का मतलब। और वो जब के कोई न काम आया, वो जब के कोई न काम आया, समझ में आया दुआ का मतलब। वो जब के कोई न काम आया, समझ में आया दुआ का मतलब। और मैं कह कहूँ को ना रोक पाया, मैं कह कहूँ को ना रोक पाया, वो बता रहा था हया का मतलब। मैं वो बता रहा था हया का मतलब। और एक गजल सुनिए कि उसका हो हम नाम बुरा लगता है, उसका हो हम नाम बुरा लगता है, बेवजह एहसान बुरा लगता है। उसका हो हम नाम बुरा लगता है, बेवजह एहसान बुरा लगता है। और मुझको बस इतनी सी उससे नफरत है, मुझको बस इतनी सी उससे नफरत है, उसका हर एक काम बुरा लगता है। मुझको बस इतनी सी उससे नफरत है, उसका हर एक काम
बुरा लगता है। और शेर सुनिए कि साल महीने में हो फिर तो अच्छा है, साल महीने में हो फिर तो अच्छा है, और रोज का हो मेहमान बुरा लगता है। साल महीने में हो फिर तो अच्छा है, रोज का हो मेहमान बुरा लगता है। और इश्क तो वैसे मैं भी करता, अच्छा काम है करना चाहिए। इश्क तो वैसे मैं भी करता, अच्छा काम है करना चाहिए। इसका बस आगाज है अच्छा, अंजाम बुरा लगता है। आगाज है अच्छा, अंजाम बुरा लगता है। और शेर बड़ा नाजुक है कि मजहब को नफरत की चादर में लपेटा है जब से, मजहब को नफरत की चादर में लपेटा है जब से, तब से ही इंसान को अहमद इंसान बुरा लगता है। तब से ही इंसान को अहमद इंसान बुरा लगता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये आखिरी गज़ल कि यार से पूछिए ना यार का दुख, यार से पूछिए ना यार का दुख, जीतने वालों से पूछते हो हार का दुख। यार से पूछिए ना यार का दुख, जीतने वालों से पूछते हो हार का दुख। और छोड़ दी चारागर ने चारागरी, छोड़ दी चारागर ने चारागरी, कौन समझेगा बेमार का दुख। छोड़ दी चारागर ने चारागरी, कौन समझेगा बेमार का दुख। और गम क्या होता है जानना है अगर, गम क्या होता है जानना है अगर, जानिए फिर किसी फनकार का दुख। गम क्या होता है जानना है अगर, जानिए फिर किसी फनकार का दुख। और धीरे धीरे उखड़ रहा है सिमट, धीरे धीरे उखड़ रहा है सिमट, खा रहा है मुझे मेरी दीवार का दुख, खा रहा है मुझे मेरी दीवार का दुख। और शेख जी आप फतवा दो, शेख जी आप फतवा दो, आप क्या जाने किसी बदकार का दुख। So, for sure we're all enjoying it and we're all loving it. Somebody's come from Jalandhar, we have poets from Jammu and Kashmir. So, are we really enjoying this? Yes. Wow. Let's hear it louder, yes? I think we are here because of CLS and together, all poets. So let's hear it for CLS once. So on the count of 3, we love 1, 2, 3. We love CLS. Okay, one more time. We can do better than this. 1, 2, and 3. We love CLS. Okay. All right. Fine. We can build up more energy and do this one more time probably. Okay, poetry and more poetry. Well, doors of inspiration leads to poetry and poetry leads to a whole new world. Our next poet draws his inspiration from his work. He blends the art of teaching with the art of poetry and he educates IAS aspirants and connects with listeners as he connects with listeners as a part-time radio jockey. He writes ghazals, he writes nazms to simplify the complex, which is actually tough. So we welcome Rohit Raja. एक सर में भी टफ था, वो इन्होंने सही दे दिया वैसे, है ना? वरुण भैया जल्द कि ऐसे गाना पढ़ना लिखना छोड़ा यूं उस्ताद हुआ, ऐसे गाना पढ़ना लिखना छोड़ा यूं उस्ताद हुआ, तुम्बा टूटा तार भी टूटी बजने से आजाद हुआ। कि तुम्बा टूटा तार भी टूटी बजने से आजाद हुआ, सच्ची बातें कहनी क्यों हैं उन पे मिट्टी डालो ना, सच्ची बातें कहनी क्यों हैं उन पे मिट्टी डालो ना, शेर जो बोया मिट्टी में वो पत्तों पर इरशाद हुआ। शेर जो बोया मिट्टी में वो पत्तों पर इरशाद हुआ, जिंदा रहने का नुस्खा जब सांसों को ही आता है, जिंदा रहने का नुस्खा जब
सांसों को ही आता है, फाड़ो पन्ने और किताबें, भूलो जो भी याद हुआ। फाड़ो पन्ने और किताबें, भूलो जो भी याद हुआ। कि एक रागिनी तो गुल में है, एक रागिनी तो गुल में है, तो कुछ अदा बुलबुल में है। ऊंचा लगा है उड़ने चूहा, एक चील की चंगुल में है। ऊंचा लगा है उड़ने चूहा, एक चील की चंगुल में है। कुछ पीढ़ी तुम पीछे देखो, सूफी सबके कुल में है। कुछ पीढ़ी तुम पीछे देखो, सूफी सबके दिल में है। कि मुझको खुद से मिलने आना जाना पड़ता है। मुझको खुद से मिलने आना जाना पड़ता है। पार निकलने की राहों में ये दीवाना पड़ता है। मुझको खुद से मिलने आना जाना पड़ता है। पार निकलने की राहों में ये दीवाना पड़ता है। ना ही कोई रंग पड़ा है, ना ही मेरी आंखें हैं। ना ही कोई रंग पड़ा है, ना ही मेरी आंखें हैं। और मुझे ही खुद अपना किरदार बनाना पड़ता है। और मुझे ही खुद अपना किरदार बनाना पड़ता है। बेरंगी तस्वीर बनाई और बना दी अंबर पर। बेरंगी तस्वीर बनाई और बना दी अंबर पर। वो बादल में दिखता है, मन को समझाना पड़ता है। वो बादल में दिखता है, मन को समझाना पड़ता है। इतनी कमियों वाला पुतला शीशे आगे बैठा है। इतनी कमियों वाला पुतला शीशे आगे बैठा है। कितना मुश्किल होता है फिर भी अपनाना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है फिर भी अपनाना पड़ता है। एनलाइटेंड हो गया माहौल। एक जगह पे घूमे पहिया, मिट्टी को मटकी करना है। एक जगह पे घूमे पहिया, मिट्टी को मटकी करना है। पानी की ही मटकी दे दो, पानी पानी ही भरना है। वाह 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 भाई, फिर पढ़ दो भाई, फिर पढ़ दो। एक जगह पे घूमे भैया, मिट्टी को मटकी करना है। पानी की ही मटकी दे दो, पानी पानी ही भरना है। अश्कों की ये धारा देखो, जैसे चांदी का झरना है। मुझको उनकी बाहों में ही खुल के बोलूं तो मरना है। आखिरी फिर मैं जगह लेता हूँ कि मेरी आंखों में भेद है। मेरी आंखों में भेद है, सब रंग मिले सफेद है। मेरी आंखों में भेद है, सब रंग मिले सफेद है। जब जाम बने एक औषधि, समझो मैं खाना वेद है। जब जाम बने एक औषधि, समझो मैं खाना वेद है। भरनी है पानी में रख दे, पानी में रख दे। भरनी है पानी में रख दे, तेरी मटकी में छेद है। Thank you, Rohit. Our next poet is half Haryanvi, half Bengali, and in his own words, a cocktail of a human being. Ladies and gentlemen, please give it up for Manthan Zariwal. Hi people, so I'll be performing 7 stages of love. This piece tries to be concise and tries to be crisp so that you can make it your own. So the one stage of love is defined in just one line so that you have a spark in you and then you make it your own. So attraction, what's the harm that you lose yourself for this charm? Infatuation, foolishness without a reason, flowers blooming off season. Love, kinship over convenience, conversation over disobedience. Reverence, open door, dusting feet, worship to be, love to keep. Worship, my beloved, my higher, on my knees, I'm here to admire. Obsession, occupied with devotion, driven with emotion. Death, surrender to meet, tired of being, don't want to be seen in the absence of heat. जिथे शब्दां च सारे दुख भुल जाइए, उत्थे जख्मां ते मरहम लगदा है कविता. For some poetry is a pilgrimage, for some quest of truth, some solace, but for Pranneet it is therapy. She's an MBA student with BTech background, and let us just explore the healing power of words with Pranneet. Over to Pranneet.
मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो प्लीज माफ करना। I'm gonna share two pieces. So first is Gurdi Pand. So ਪੰਡ ਗੁਰਦੀ ਰੱਖ ਪਾਸੇ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੱਖ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ, ਹਾਏ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਝਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ, ਰੂਹ ਸਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਹ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੂ ਖੁਦ ਲਈ ਰੱਖੀ, ਜਾਣਾ ਬਦਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਧੋਖਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much. We're gearing up for the final act and our short stopper performance by Varun Anand ji. It gives me immense pleasure to introduce our featured poet of this evening. As lonely as a tree in the woods, so is the poet among people. Yet, it is this solitude that fuels our craving to reach out to others. A lawyer by profession and a poet by heart, our next performer, Paridhi Kalotra Agarwal. She's a performer and she has been captivating the hearts of her audiences with her words and deep thoughts. So here's a little taste of her poetic prowess. Over to Paridhi. Good evening, dear artists, art lovers, and the esteemed guests. Am I audible? Yes. All right. जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने इतना बिल्डअप कर दिया कि मुझे पहले पहचानने में दिक्कत हुई कि ये मेरे बारे में ही कह रही हैं। चलिए, तो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि कुछ ऐसे पोइट्स हैं जिनसे एक भाषा में लिखा नहीं जाता। मैं उस कैटेगरी की पोइट हूँ। तो जो मैं आज आपको सुनाऊंगी वो पीस इंग्लिश और हिंदी में होगा और इसका नाम है इफ़ माई मदर वॉज माई डॉटर। माँ जो मेरी बेटी होती, माँ खुशियों की पेटी होती। माँ जो मेरी बेटी होती, माँ खुशियों की पेटी होती। उसके होने भर में मैंने अपनी सारी दुनिया समेटी होती। साफ बताती माँ को मैं, साफ बताती माँ को मैं कि बच्ची हो मेरी हो, ना कोई गुड़िया ना कोई परी हो। पर याद रहे बेटी कि तुम जादू से भरी हो। जादू, जादू जो हर मनुष्य में विद्यमान है। जादू जो जीवंत होने का प्रमाण है। जादू जो संवेदना है, कल्पना है। जादू जो सब सही कर सकने का सपना है। जादू, जज्बा, जीवन। जादू, जज्बा, जीवन, माँ को इनका संबंध बताती, माँ जो मेरी बेटी होती। If my mother was my daughter, I would have made music out of her laughter. If my mother was my daughter, I would have made music out of her laughter, then sung it into her ear and told her, oh dear, when you feel low, just listen to the music of your own laughter and know that you
are your own healing. You are capable of dealing everything under the sun, and you must shun anything or anyone who makes you believe otherwise. You, my darling daughter, were born to rise. But the world will never see you as the shiniest star of the galaxy, and you will be rather reduced to just anatomy. You will be rather reduced to just anatomy. इसलिए सुनो बेटी, जब तुम्हारा हृदय तुम्हें बताता है कि तुम में ब्रह्मांड समाता है, तुम अपना विश्वास करना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जो समझे कि तुम साक्षात चमत्कार हो। यहाँ तो तुम बस हादसों से भरा अखबार हो। माँ को सब सच सच बताती, माँ को सब सच सच बताती, माँ जो मेरी बेटी होती। If my mother was my daughter, I would have brought her all the love of my father, all the love of her father whom she lost when she was 6. She didn't know what she had lost, so she didn't know what to fix. A gaping wound hurt her, but she didn't know its location. How would you know the difference when something you never had is taken? क्योंकि जब पता नहीं कि टूटा क्या है, तो जोड़ा क्या जाए। जब पता ही नहीं कि टूटा क्या है, तो जोड़ा क्या जाए। सबको स्नेह देने वाली पे हिस्से भी तो प्रेम आए। बस इतना ही माँ को देती, इतना ही माँ को देती, माँ जो मेरी बेटी होती। If my mother was my daughter, I would have definitely taught her to not to carry on with someone like my father, who didn't care enough for her or their children, and that broken marriages are not good for anyone. डोली पर जाना और अर्थी पर आना, डोली पर जाना और अर्थी पर आना, या जलती चिता सा विवाह जीती जाना, ऐसा अनर्थ मैं होने ना देती। माँ जो मेरी बेटी, समझाती माँ को मैं कि उसकी शादी खुद उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ये रिश्ता सुकून होना चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। तोड़ उस पीड़ा के बंधन को, लौट आओ बेटी, तोड़ उस पीड़ा के बंधन को, लौट आओ बेटी। तुम कल थी, आज हो और सदा रहोगी मेरी खुशियों की बेटी। If my mother was my daughter, I would have adored her and loved her so well that she didn't miss the love of her father or the love of my father, since my love for her would have been much greater. I would have loved her like Mother Nature if my mother was my daughter. Ladies and gentlemen, before we move on to our next poet, can you please thank Parithi for her soulful and lyrical piece, If Your Mother Was Your Daughter, with a round of applause. Ladies and gentlemen, even though our next guest does not need an introduction, I will just go ahead and state what is but common knowledge for everybody. Ladies and gentlemen, Sukhdeep Sukh is a famous Punjabi actor and writer. Currently he is working on his debut book about poetry in prose, and he likes to write what is lyrical, vivid and soulful. Ladies and gentlemen, please welcome Sukhdeep Sukh on stage. सत श्री अकाल जी। 3-4 नज़्मां पेश करूँगा। तू मैनू रब वर्गी सी, मेरी साथ तू थोड़ी चुप रहने लगी, फिर रुस्सी, फिर गुस्से हुई, फिर लड़ गई, फिर अलग हुई, फिर जुदा हो गई, फिर मैं रह गया, मैं कल्ला रह गया, मैं खाली हो गया, मैं थक गया, मैं खड़ गया। मैनू गुस्सा आया, मैनू बहुत गुस्सा आया, मेरे अंदर खरूज चलिया, मेरे अंदर जहर लग गया, मैं पत्थर हो गया, पत्थर तो मैं लकड़ हो गया, लकड़ थोड़ी नरम हुई, फिर लकड़ ते हरी काई फुट गई, लकड़ थोड़ी नरम हुई, फिर लकड़ ते हरी काई फुट पई। मैं रोया, मैं बहुत रोया, मैं खड़ गया,
मैं तुर पिया, मैं भज पिया। फिर मैं सोचने लग पिया, मेरे साह वापस आने लगे, मैं मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर मैं खुश भी रहने लगा। फिर मैनू कोई मिलिया बड़े चिरों बाद, जिसनों मैं बहुत चंगी तरह जानता सी। उन्होंने भुल गया सी मैं। बुझो भला कौन सी? वो मैं सी। दूसरी नज़र, चुल्हे च पाथियां दे सेक ते रजदा दुध ते उत्तों धुखदा धुआं। चुल्हे च पाथियां दे सेक ते रजदा दुध ते उत्थों धुखदा धुआं। तू मैनू सुगंध वर्गी क्यों लगदी? देखदी है रसोई विच रोटियां बनाउंदी ते मैं तेरियां चूड़ियां की आवाज़ बिना थके सुन सकदा। मैं देखदा अपने घर विच रंबे नाल मिट्टी पटदे होए ते गलदौजी दे फुੱਲ उगदे होए। तैनूं देखदा है सर्दियां विच कदौली च आउंदी तितर मितरी धुप च कंबल लैके सुत्ती पई। मैं देखदा सवेरे उठ के मेरे लिए सराणे खड़ी हैं, चाह लेके आई देसी बिस्कुटां नाल। मैं देखदा तू अपने पेकियों घरों मेरे लिए अलसियां दियां पिन्नियां लेके आई। देखदा शाम नूं मेरे घरे मेरे घर के बूहां च खड़ी हैं, उड़ीक रही है मैनूं। रात नूं असीं जदों छत ते पए हां, उपर तारियां वल वेख रहे हैं, भविख बारे गल्लां करदे करदे कदों सौ गए सानूं पता ही नहीं लगा। बाबा बोलन ते मेरी जाग खुली, वाहिगुरू बोल के उठ खड़े होए। मैं देखदा तेरे पब्बां ते नचदे चावां, मैं देखदा तेरे अखां विच हासे ते हासा देख के सिर्फ हसना क्या। कदे रोना नहीं होया तेरा जी करे मैनू वेख के रोवी। हो सकता मैं तेरे नाल ही रोवां। दुख वंड लीदे हुंदे कमलीए, दुख वंड लीदे हुंदे कमलीए, हासे दुगने हो जाते हैं ते दुख ते। कुल दुनिया जहान तो तेनू जुदा कह दियां, कुल दुनिया जहान तो तेनू जुदा कह दियां, खुदा दे सावे तेनू खुदा कह दियां। कुल दुनिया जहान तो तेनू जुदा कह दियां, खुदा दे सावे तेनू खुदा कह दियां, या कह दियां तेनू नज़रां नूं मेरी ज़ियारत, या मेरे सजदियां दी सदा कह दियां। चानण दे चिट्टे सागरां दे मोती नेरियां च उगदी सुबह कह दियां, या कह दियां मैं तेनू तरकाला रंगी, चल नूं तेरे नक दा कोका कह दियां। तेरे वजूद नूं कहा मैं मुकम्मल गज़ल, तेरे वजूद नूं कहा मैं मुकम्मल गज़ल, तू रदीफ मैं तेरा काफिया कह दियां। या कह दियां तेनू रातां वर्गी, तारियां दा तेनू गवाह कह दियां, या कह दियां तेनू सूरजां दी लाली, ओहदी ठंडी हवा कह दियां, या कह दियां तेनू कणियां दा गीत, अपने जिउण दी वजह कह दियां। मिलिए तू मैनू मुद्दतां मगरों, मिलिए तू मैनू मुद्दतां मगरों, दस तेनू सुख दा साह कह दियां। हवावां ने तेनू रुख पुछना, शहद ने रस दी अखण दी, सूरजां ने पुछनी है लाली, रातां ने पुछना तेरे कच्चल दा पा, रेत ने कहना मैनू सिल्ली कर, फुल्लां ने रस ली अर्जी भेजनी तेनू, सतरंगी पींग ने रंग उधारे मंगने, मुहब्बत ने मोह मंगना, उदासी ने कहना मैं खुश हाँ, आरजू मिलन दी आरजू कर रही, सागर कहंदा मैं खाली हाँ तेरे बगैर, सफर ने आप चल के तेरे को आना, शाम तेरे लिए रुक गई है,
ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਤੇਰੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਇਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਰਕਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਹੋਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾएंगे। To a close of another segment. Well, this is not really a close which is an end. It is a close which has brought us closer to ourselves, closer to the little world that we created around us today. And now I would like to request our honorable chief guest, Dr. Sumita Misra, to kindly come over and address the gathering. Ma'am is one of the prominent poets of the contemporary India, and her collection of Hindustani poems, Lambo Ki Shabnam, is a bestseller. Her works include A Life of Light, Zara Si Dhoop, Waqt Ke Ujale Mein, and Petrichor. Ma'am, I'll get one more. Waqt Ke Ujale Mein was conferred Best Poetry Collection Award in 2017 by Chandigarh Sahitya Academy, and she was honoured with the award of recognition by Chandigarh Sahitya Academy for her contribution in the field of literature in 2024. Currently, she holds the office of Additional Chief Secretary, Haryana, and contributes in the policy making process on the same. And ma'am nurtures a keen interest in the propagation of literature and culture. She's a founder, chairperson of CLS, Chandigarh Literary Society, and a number of literary and cultural events have been organized under her patronage, just like this. So, over to ma'am. Wow. Just wow, wow, and wow. I think first, let's have a huge round of applause for the poetry. Good evening, friends. I personally have enjoyed this evening. I had thought I would enjoy it, but I think I've enjoyed it even more than I could have anticipated. And for that, the creativity in this room and the energy, not just from the performing poets, but the audience. And poetry always starts out as a solitary exercise. Sant Tulsidas ne bhi Ramcharitmanas Swanta Sukhai likhi thi. So you write first for yourself. But I think it is when that poem connects with the reader that it really becomes something alive and pulsing. And an event like this places the poet and the audience in a direct conversation. It's a conversation that transcends the spoken word. It is through the word, but it transcends the spoken word. Because a great poem is one which actually communicates far more than is actually said. I don't know if I make sense, but to me, since I love to read poetry as much as I try to write it, but a great poem leaves me, talking to it in my head for hours, for days, perhaps. It lingers like, like the scent of crushed rose petals in an old book or in a room, where you can't pinpoint कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पर आ रही है. So एक बार फिर आप लोग audience को भी बधाई, हमारे poets को बधाई. I'm so happy वरुण आज हमारे साथ हैं. और मैं इसीलिए पहले बोल रही हूँ जैसे कि एक बार हम उनको यहाँ पे जब आमंत्रित करें उसके बाद कोई मतलब आपको कोई enjoy कर पाए. जिंदगी में कभी कभी अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है, और आज मेरा मन कर रहा है कि बहुत अच्छा किया हमने ये ओपन माइक करके. इतनी अच्छी एक शाम गुजरी है, इतनी हमने शानदार शायरी और कविता सुनी है. पर इसके पीछे आइडिया किसी का भी हो, पर एक टीम होती है, और मैं उस टीम का भी इस्तकबाल करना चाहती हूँ आज. सोनिया ने बहुत मेहनत करी, और बिग राउंड out the announcement for the first ever Chandigarh Literary Society Open Mic event. We did not think that we'd get this kind of a response. We had more than 100 entries, and it is not strictly an open mic, because an open mic means you can actually just come up and anyone can take the mic.
but we did a lot of sifting because we wanted it to be an event that was within a certain time frame and which, to use modern day lingo, would give us the most bang for the buck. So, and to give you the most bang for the buck. तो इन्होंने बहुत मेहनत करी इस पे. साथ में आज शिखर and Yuvika and as always in the background Afan and Rakshita now and the whole team. So इनके लिए भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि CLS की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम साहित्य को, सोच को, कला को, अदब की दुनिया को एक जगह दें, एक मुकाम दें. और क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ भी हो, ब्रह्मांड की शुरुआत में शब्द था और हम सब जब विलीन हो जाएंगे तब भी शब्द ही रहेगा. और साहित्य, हमारी सोच, एक सिविलाइजेशन की सोच, एक देश की सोच, एक समाज की सोच, ये सिर्फ और सिर्फ साहित्यकार आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाता है. तो जहाँ साहित्य और कविता हमें अपनी विरासत से जोड़ती है, पर वो मुस्तकबिल की भी हमारी पहचान है. जो हम आज लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो शब्द सदियों तक गूंज सकता है. इसलिए आपका लिखना कीमती, ज़रूरी है. चाहे आप दर्द का लिखें, चाहे क्रांति का लिखें, चाहे क्रोध का लिखें, पर लिखना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है. समय की पीठ पर यह हमारा हस्ताक्षर है. और यही हमारी कोशिश है. और ये ओपन माइक का केंद्र हमने कोशिश की कि हम युवा वर्ग को रखें. CLS में बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, मेरे एज ग्रुप के, मेरे से बड़े एज ग्रुप के. But I want to also, we want to reach the younger generation. और अगर आप लोग सबकी सहमति हो तो मैं propose that we must have an annual and we will seek entries, we will sift them, have an annual CLS open mic. हो सकता है इससे बड़े स्केल पे हो, but I think this scale is just perfect as it is. But we will make this an annual feature. और ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर आप लोग सब का धन्यवाद, आभार, and thank you for being here and now looking forward to hearing about it. Thank you. Thank you Sumita ma'am for your ever inspiring words. देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, अगर आपको शेर व शायरी का शौक है, कविताओं का, गज़लों का शौक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हमारी अगली शख्सियत का नाम नहीं सुना होगा. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर वरुण आनंद की, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, दुबई में भी कवि सम्मेलनों और मुशायरों में भाग लिया है. So ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together, hold your breath and give it up for Varun Anand. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और CLS की पूरी टीम का. सुमिता मैम हमारे सामने बैठी हुई हैं, हम बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने और उनके सामने अपनी शायरी सुनाने का मौका है. तो जब भी चंडीगढ़ आता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे लोग आप जैसे शायरी को पसंद करने वाले, और अफान भाई, बहुत मेहनत है पूरी टीम की, मुबारकबाद देता हूँ मैं उन्हें और उनके आगे आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं. तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी शायरी पे आता हूँ. सुनिएगा कि इससे पहले कि पश्चाताप करें, इससे पहले कि पश्चाताप करें, आओ दो चार और पाप करें. इससे पहले कि पश्चाताप करें, आओ दो चार और पाप करें. प्रेम में ढोंग हम नहीं करते, प्रेम में ढोंग हम नहीं करते. आप कर पा रहे हैं, आप करें. और प्रेम में ढोंग हम नहीं करते, आप कर पा रहे हैं, आप करें. हिज्र यादों की एक डफली है, हिज्र यादों की एक डफली है.
थाप करें। हिज्र यादों की एक डफली है, उसको रोएं तो इस पे थाप करें। एक मतलब और 2-3 शेर ये भी सुने कि क्यों सिखाया था इश्क खेल मुझे, क्यों सिखाया था इश्क खेल मुझे, झेलना पड़ गया ना झेल मुझे। क्यों सिखाया था इश्क खेल मुझे, झेलना पड़ गया ना झेल मुझे, झेलना पड़ गया ना झेल मुझे, उसका कैदी हूं कहना पड़ता है, उसका कैदी हूं कहना पड़ता है, अच्छी लगती है तेरी जेल मुझे। उसका कैदी हूं कहना पड़ता है, अच्छी लगती है तेरी जेल मुझे। ख्वाब में कोई जाता दिखता है, ख्वाब में कोई जाता दिखता है, तंग करती है एक रेल मुझे। ख्वाब में कोई जाता दिखता है, तंग करती है एक रेल मुझे, जान ले लेता है चरागों की, जान ले लेता है चरागों की, पानी लगता है तेरा तेल मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल से ताज़ा गजल है, मैंने कहीं सुनाई नहीं है तो मौका है यहाँ सुनाने का, हालांकि लिखी तो कुछ महीने पहले है। सुनिएगा कि उसकी ज़बान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है, उसकी ज़बान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है, वो बस अच्छा कहती है और सब अच्छा हो जाता है। उसकी ज़बान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है, वो बस अच्छा कहती है और सब अच्छा हो जाता है, वो बस अच्छा कहती है और सब अच्छा हो जाता है। महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती हैं, महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती हैं, वो सस्ते की और भी देखे तो महंगा हो जाता है। महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती हैं, वो सस्ते की और भी देखे तो महंगा हो जाता है, वो सस्ते की और भी देखे तो महंगा हो जाता है। उसको ज्यादा देखने वालों ये भी थोड़ा ध्यान रहे, उसको ज्यादा देखने वालों ये भी थोड़ा ध्यान रहे, उसको ज्यादा देखता है जो वो अंधा हो जाता है। उसको ज्यादा देखने वालों ये भी थोड़ा ध्यान रहे, उसको ज्यादा देखता है जो वो अंधा हो जाता है। आपकी नजर है ये शेर सुमिता मैम, उसको ज्यादा देखता है जो वो अंधा हो जाता है। शेर ये इनकी नजर है कि उसका बस ये पूछना दुख के मारों से तुम कैसे हो, उसका बस ये पूछना दुख के मारों से तुम कैसे हो, उसके इतना पूछने से ही दुख आधा हो जाता है। उसका इतना पूछना दुख के मारों से तुम कैसे हो, उसके इतना पूछने से ही दुख आधा हो जाता है। उसके हाथ नहीं है मानो पारस पत्थर है कोई, वो जिसको छू देता है सब सोना हो जाता है। उसके हाथ नहीं है मानो पारस पत्थर है कोई, वो जिसको छू देता है सब सोना हो जाता है। उसकी बस ये आदत उसके दुख का कारण बनती है, उसकी बस ये आदत उसके दुख का कारण बनती है। उसका कोई नहीं होता है, वो सबका हो जाता है। बहुत शुक्रिया।
उसका कोई नहीं होता है, वो सबका हो जाता है। हाँ, वो तो सुनाएंगे आखिर में। उसका कोई नहीं होता है, वो सबका हो जाता है। एक ताज़ा गज़ल से कुछ शेर ये भी देखें कि संजीदा गज़ल है। मैं बीच बीच में बड़ों के लिए भी गज़ल कहूँगा और नौजवानों के लिए। नेकियां मत सिखा, हम बुरे लोग हैं, क्यों नहीं मानता हम बुरे लोग हैं। नेकियां मत सिखा, हम बुरे लोग हैं, क्यों नहीं मानता हम बुरे लोग हैं। सच्ची बातें वफा और अच्छे अमल, सच्ची बातें वफा और अच्छे अमल, ये ना हमको सुझा हम बुरे लोग हैं। ये ना हमको सुझा हम बुरे लोग हैं, ये ना हमको सुझा हम बुरे लोग हैं। जिंदगी काट दी अच्छा बनने में और जिंदगी काट दी अच्छा बनने में, और जब मरे तो लगा जिंदगी काट दी अच्छा बनने में, और जब मरे तो लगा हम बुरे लोग हैं। हम पे अपनी दुआएं न कर यूं फजूल, हम पे अपनी दुआएं न कर यूं फजूल। हमको दे बद्दुआ हम बुरे लोग हैं, हमको दे बद्दुआ हम बुरे लोग हैं। इससे पहले कोई लिखता हमको बुरा, हमने खुद लिख दिया हम बुरे लोग हैं। हमने खुद लिख दिया हम बुरे लोग हैं। कुछ शेर ये भी देखें कि हर राज खोल देता हूं लोगों के सामने, हर राज खोल देता हूं लोगों के सामने। कपड़े बदलता रहता हूं गैरों के सामने, कपड़े बदलता रहता हूं गैरों के सामने। हम ही ये चाहते हैं नई नस्ल में हो प्यार, हम ही ये चाहते हैं नई नस्ल में हो प्यार, और हम ही लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने। ये ज्यादा अच्छा था, दाल आपकी कमाई। हम ही ये चाहते हैं नई नस्ल में हो प्यार, और हम ही लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने। आंखों के सामने मेरे सब अपने मर गए, आंखों के सामने मेरे सब अपने मर गए। आंखों के सामने मियां, आंखों के सामने। मैं उसकी आरज़ू हूं मगर उसकी कोई और, मैं उसकी आरज़ू हूं मगर उसकी कोई और। है एक सा ही मसला दोनों के सामने, है एक सा ही मसला दोनों के सामने। एक मतलब और दो तीन शेर ये भी सुने कि ये प्यार तेरी भूल है कबूल है, ये प्यार तेरी भूल है कबूल है। मैं संग हूं तू फूल है कबूल है, मैं संग हूं तू फूल है कबूल है। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं, तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं। जो रूल है वो रूल है कबूल है। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं, जो रूल है वो रूल है कबूल है। यही है गर तेरी रजा तो बोल फिर, यही है गर तेरी रजा तो बोल फिर। कबूल है कबूल है कबूल। दुनिया में जो मीठे दरिया होते हैं, दुनिया में जो मीठे दरिया होते हैं, वो सब
उसके झूठे दरिया होते हैं। दुनिया में जो मीठे दरिया होते हैं वो सब उसके झूठे दरिया होते हैं। अपनी आंखें धोता है वो दरिया में, अपनी आंखें धोता है वो दरिया में, अब समझा क्यों नीले दरिया होते हैं। अपनी आंखें धोता है वो दरिया में, अब समझा क्यों नीले दरिया होते हैं। अब समझा क्यों नीले दरिया होते हैं। उसकी आंख से बहते आंसू हैं वो सब, उसकी आंख से बहते आंसू हैं वो सब, रास्ते से जो भटके दरिया होते हैं। उसकी आंख से बहते आंसू हैं वो सब, रास्ते से जो भटके दरिया होते हैं। एक दो गजलें और सुन लें कि भैया उसके घर में फूल नहीं थे, फूलों की तस्वीरें थी। अच्छा, मुझे यार कहाँ से याद आ गई वो गजल। और उसका मतलब है कि मुकाबिल एक लफ्ज आएगा, मुकाबिल का मतलब है सामने, बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ कोई शख्स। मतलब है कि एक दीवार पे पानी के कुछ कतरों की तस्वीरें थी। मैम सुनिएगा, एक दीवार पे पानी के कुछ कतरों की तस्वीरें थी और मुकाबिल उसके प्यासे लोगों की तस्वीरें थी। एक दीवार पे पानी के कुछ कतरों की तस्वीरें थी और मुकाबिल उसके प्यासे लोगों की तस्वीरें थी। भूखे नंगे लोग थे जिनमें मजबूरी के मारे हुए, भूखे नंगे लोग थे जिनमें मजबूरी के मारे हुए, वो तस्वीरें बाजारों में लाखों की तस्वीरें थी। भूखे नंगे लोग थे जिनमें मजबूरी के मारे हुए, वो तस्वीरें बाजारों में लाखों की तस्वीरें थी। वो तस्वीरें बाजारों में लाखों की तस्वीरें थी। उसके घर का गोशा गोशा, कोना कोना, उसके घर का कोना कोना महका था पर हैरत थी। उसके घर का कोना कोना महका था पर हैरत थी। उसके घर में फूल नहीं थे, फूलों की तस्वीरें थी। उसके घर में फूल नहीं थे, फूलों की तस्वीरें थी। अब उसके टेबल पर कोई और ही चेहरा रहता है। अब उसके टेबल पर कोई और ही चेहरा रहता है। पहले जिस टेबल पर बस हम दोनों की तस्वीरें थी। बहुत शुक्रिया। पहले जिस टेबल पर बस हम दोनों की तस्वीरें थी। इस शेर से मुझे एक और गजल याद आई है, वो भी मैं सुना देता हूँ, ताज़ा ही है, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं गए ही नहीं है, यहीं पे आए तो वो गजलें यहीं पे याद आ रही हैं। मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा, महसूस कीजिएगा उसको। दाग कम भी देंगे तो चलेगा। मतलब है कि हमारी चीजों को तेरा मेरा बता रहे हो तो जा रहे हो। हमारी चीजों को तेरा मेरा बता रहे हो तो जा रहे हो। नहीं सुना था कभी जो तुमसे सुना रहे हो तो जा रहे हो। हमारी चीजों को तेरा मेरा बता रहे हो तो जा रहे हो। नहीं सुना था कभी जो वो भी सुना रहे हो तो जा रहे हो। ये मेरे कपड़ों से अपने कपड़े अलग हटाकर मुझे बताकर, ये मेरे कपड़ों से अपने कपड़े अलग हटाकर मुझे बताकर हर एक टेबल से अपनी फोटो उठा रहे हो तो जा रहे हो।
हर एक टेबल से अपनी फोटो उठा रहे हो तो जा रहे हो, मेरे सवालों से डर रहे हो, ये जल्दबाजी जो कर रहे हो, मेरे सवालों से डर रहे हो, ये जल्दबाजी जो कर रहे हो, जरूर तुम भी किसी की बातों में आ रहे हो तो जा रहे हो। मेरे सवालों से डर रहे हो, ये जल्दबाजी जो कर रहे हो, जरूर तुम भी किसी की बातों में आ रहे हो तो जा रहे हो। आखिरी शेर है इस गजल का कि थे कल तलक आपकी मोहब्बत जिसे बताते हो अब मुसीबत। थे कल तलक आपकी मोहब्बत जिसे बताते हो अब मुसीबत, इसी मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा रहे हो। इसी मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा रहे हो तो जा रहे हो। कुछ शेर और सुनिएगा कि तेरी याद की सेज सजाई जब तक नींद नहीं आई। तेरी याद की सेज सजाई जब तक नींद नहीं आई। साथ जगे मैं और तन्हाई जब तक नींद नहीं आई। साथ जगे मैं और तन्हाई जब तक नींद नहीं आई। एक नंबर जो बरसों से इस दुनिया में मौजूद नहीं। एक नंबर जो बरसों से इस दुनिया में मौजूद नहीं, कल फिर उस पर कॉल मिलाई जब तक नींद नहीं आई। कल फिर उस पर कॉल मिलाई जब तक नींद नहीं आई। जीवन भर के सारे उधड़े रिश्ते लेकर बैठ गए। जीवन भर के सारे उधड़े रिश्ते लेकर बैठ गए और फिर उन पर की तुरपाई जब तक नींद नहीं आई। और फिर उन पर की तुरपाई जब तक नींद नहीं आई। कल फिर दिल ने हमको कोसा, रूह ने गंदी गाली दी। कल फिर दिल ने हमको कोसा, रूह ने गंदी गाली दी। खुद की खुद से हाथा पाई जब तक नींद नहीं आई। खुद की खुद से हाथा पाई जब तक नींद नहीं आई। नींद आई तो एक दूजे से लिपट के सोए मैं और वो। नींद आई तो एक दूजे से लिपट के सोए मैं और वो, लेकिन जमकर हुई लड़ाई जब तक नींद नहीं आई। लेकिन जमकर हुई लड़ाई जब तक नींद नहीं आई। आप सबकी पसंदीदा गजल भी सुन लीजिए, वो भी मैं सुना देता हूँ आपको। उससे पहले 4 मिसरे भी सुन लीजिए कि तेरी निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त। तेरी निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाए क्या करे बता सूखे हुए दरख्त। मर जाए क्या करे बता सूखे हुए दरख्त। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम। पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब है कि चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ।
उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ है। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रखते उसको वो दिलवानी है। जिस शय पर वो उंगली रखते उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन नुस्खे हाथों से। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन नुस्खे हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। उसका छूना एक तरफ। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्त हैं सोनिया जी, वह यहाँ आई हुई हैं। एक कलाम उनका बड़ा पसंदीदा है, तो वो भी आप सबको सुनाना चाहूँगा, उनको भी सुनाना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि वो सुनेंगी वो कलाम, तो सुनिएगा। आप भी थोड़ा सा झेल लीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो। वैसे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपको भी। मतलब है कि अपना किरदार बचाने में लहू लगता है। अपना किरदार बचाने में लहू लगता है। जिंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है। अपना किरदार बचाने में लहू लगता है। जिंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है। हिज्र की आग शराबों से कहां बुझती है। हिज्र की आग शराबों से कहां बुझती है। हिज्र की आग बुझाने में लहू लगता है। हिज्र की आग शराबों से कहां बुझती है। हिज्र की आग बुझाने में लहू लगता है। और तस्वीरें तो बनती हैं फकत रंगों से। और तस्वीरें तो बनती हैं फकत रंगों से। उसकी तस्वीर बनाने में लहू लगता है। उसकी तस्वीर बनाने में लहू लगता है। इसलिए भी मैं बुझा रखता हूं माजी के चिराग, अतीत के। इसलिए भी मैं बुझा रखता हूं माजी के चिराग। इन चिरागों को जलाने में लहू लगता है। ये वो दुनिया है जहां आने में आसानी है। ये वो दुनिया है जहां आने में आसानी है। हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है। ये वो दुनिया है जहां आने में आसानी है। हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है। जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत ना करे। जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत ना करें। इस मोहब्बत को निभाने में लहू लगता है। इस मोहब्बत को निभाने में लहू लगता है। आखिर में नज्म है, वो मैं सुनाकर अपनी जगह लूंगा। सुनिएगा कि झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। उम्दा क्या है, उसका चेहरा। झीलें क्या है, उसकी आंखें। उम्दा क्या है, उसका चेहरा। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशियां क्या हैं, उसका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई। खुशियां क्या है, उसका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई। सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी। सावन क्या है, सर्दी हो गई उनको। सावन क्या है, उसका रोना।
सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा, गर्मी क्या है उसका गुस्सा, और बहारें उसका हंसना, और बहारें उसका हंसना। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें। लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना। लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। और वो क्या है एक राही है, और वो क्या है एक राही है। क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या सोचा है उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। बहुत बहुत I would like to echo ma'am's expression of gratitude. We are thankful that you could make it today, and we all could get together, and we could make this event possible, we could make this event special, we could make this event grand. Special gratitude for the poets who came here today, bared their souls, and also to the featured poets. We are thankful because they made this event very special for us. Thank you to the audience who's here, and for sharing this experience with us. And also, yes ma'am, I would request the poets to please stay back so that we could have a group photograph. Right? I request the poets to kindly come closer to the stage for a group photograph, please.